Hello guys, welcome back to my channel. मेरा नाम मोहित है. So in this video we'll learn about how to make email sender service with Spring Boot. So for that, first of all, you need a email sender service account. It is a regular account. You can make it easily. So first of all, go to make an account, go to your manage your Google account. So first of all, switch on two-factor authentication and make an app password. You can easily search app password. This is the app password. You just need to verify yourself and create one app password for your Spring Boot app. And secondly, you need to switch on two-factor authentication for this. If you have done these two configurations, you can easily run a backend for your email sending service. You just need to copy that app password and store it somewhere. We will use it shortly. So when your email will be created, then we will go to VS Code and write the code. अगर मैं इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँ कि ईमेल सर्विस क्या होती है. बेसिकली आप कोई भी बैक एंड एप्लीकेशन यूज़ करोगे, आपको अगर यूज़र को जैसे मान लो कोई भी चीज़ शेयर करनी है, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, आप उसके मेल पे करोगे, क्योंकि वो एक सिक्योर्ड पाथ हो सकता है, सिक्योर्ड जगह हो सकती है. क्योंकि मेल पे अगर आप रीसेट पासवर्ड का लिंक भेज सकते हो, OTP भेज सकते हो, आपको यूज़र से किसी तरह इंटरैक्ट करना है या उससे कुछ उसे वेरीफाई करना है, तो आप उसका मेल का यूज़ करते हो. तो आज हम वही सीखेंगे कि हम स्प्रिंग बूट में ईमेल सर्विस कैसे बिल्ड करते हैं. सबसे पहले हम स्प्रिंग इनिशियलाइजर ओपन करेंगे अपने VS कोड में. मैंने आपका एक्सटेंशन डाल रखा है, तो मेरे कंट्रोल शिफ्ट पी से याद आ रहा है. हम क्लिक करेंगे, हम उसका वर्जन सेलेक्ट करेंगे, हम जावा पे क्लिक करेंगे एंड अब हम यहाँ पे अपना वो डाल सकते हैं जो भी ग्रुप आईडी है. जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा टेस्ट डॉट ईमेल सेंडर सर्विस है. एंटर. हम यहाँ पे सेंडर सर्विस बना रहे हैं या फिर हम यहाँ पे एप्लीकेशन बना रहे हैं. We'll just write it down as application. We will make the packaging type as jar, Java version 17. So we'll use three basic dependencies here. First of all is Spring Web. To do any kind of your RESTful APIs work, you need to use Spring Web. And then Lombok, which reduces the boilerplate code. I'll show you in the video further. And then third, that is the important one, Java Mail Sender. With the help of these three dependencies, you can easily send mail to users and anyone. So you will use it, you will generate into the folder, you will open, and boom, your project is ready. So you know the basic structure of Spring Boot project. You have a source, you have main, you have Java and resources. This is your main file which run when you are making your server run. In this resources you have application.properties where you assign all the application, like your username, password for the mail will be assigned here. I'll share that shortly. So first of all, we'll make two packages. Just a moment. Yeah. So we'll make two packages. First is our service and another one is your controller. This is the basic Spring Boot architecture. There's a service layer, there's a controller layer. You make your endpoints at controller, you make the logic at service. This is all the basic stuff. So first of all, let me write down all. So I've already written all the basic configurations which need to be done in order to run your email sender service. Here are these. So basically I have deleted the password because it is not safe to show you here, because it is of my project actually. So first of all, there is a Spring Mail host. So we are using Gmail host. So this configuration tells that our host service is Gmail, our host server is Gmail, and then we have port, that is 587, and we have a username for your, like, anything. It can be my name is Mohit, so mine is mohitsaraswat@gmail.com. So we have made one for my application. It can be your job, it can be your company, like for your company is like msl@gmail.com. It can be anything. Then you have to write the password here. This SMTP auth, दिस कॉन्फ़िगरेशन ये बेसिकली क्या करती है, आपको ऑथराइज करती है. जैसे आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ असाइन कर रही हो, तो ये आगे सेंड करेगी. जैसे आपको मेल से बात करनी है, आपको ऑथराइज तो होना है कि आप भेज रहे हो ये सब चीज़ें, तो इसे ट्रू करने से वो चीज़ हो जाएगी. ये जो स्टार्ट TLS इनेबल है, ये क्या करता है, जो आपका नॉर्मल टेक्स्ट कनेक्शन होता है उसे सिक्योर TLS कनेक्शन में चेंज कर देता है. ये बेसिकली 3 टाइम आउट सेटिंग्स है. फर्स्ट इज कनेक्शन टाइम आउट की 5 सेकंड बाद, ये 5 सेकंड है कि 5 सेकंड में अगर आपका कनेक्शन नहीं हो तो टाइम आउट हो जाएगा. ये आपका राइट टाइम आउट है कि मतलब इतनी देर में अगर मेल ने रिप्लाई नहीं करा तो आपका टाइम आउट हो जाएगा. और तीसरी बेसिकली ये SMTP मेल टाइम आउट है. बेसिकली जब मान लो आप यहाँ से मेल सेंड करोगे
तो आप बात कर रहे हो अपने सर्वर से, तो जब तक वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आएगा तब तक ये, तो आप इसे कोशिश करना कि ज़्यादा रखो, क्योंकि बेसिकली वरना आपको सर्वर टाइम आउट एरर देखने को मिलेगा। तो ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं अगर आपको करनी है एसएमटीपी सर्वर, एसएमटीपी यूज़ करने के लिए। अब हम आ जाते हैं अपने सर्विस लेयर पे। सबसे पहले हम सर्विस लेयर बिल्ड करते हैं। तो हम यहाँ पे एक नई जावा क्लास बनाएंगे जिसका हम नाम देंगे ईमेल सर्विस। हमने ईमेल सर्विस नाम को दिया। अब हमें यहाँ पे सर्विस एनोटेशन मारनी होती है। ये क्या करती है, एक ऐसे बीन बना देती है फॉर एग्जांपल, जिसे आप आगे ऑटो वायर करके, मतलब आईओसी कंटेनर, इसमें आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन कर सकते हो, उसे कहीं यूज़ कर सकते हो। तो ये सर्विस एनोटेशन लगाना ज़रूरी होता है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक ऑटो वायर करेंगे। ऑटो वायर, हम कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे हमारे जावा मेल सेंटर के अंदर जो हमने डिपेंडेंसी डाली थी ना, जावा मेल सेंटर, उसे हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे प्राइवेट रखते हैं इसे, प्राइवेट जावा मेल सेंटर, मेल सेंटर, ये हमने नाम दे दिया। ये बेसिकली क्या है, जावा मेल सेंटर ना आपका बेसिक जो हम डाउनलोड करा था ना स्टार्टिंग में, ये आपका एक स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर एक ये आपका जैसे मान लो डिपेंडेंसी है जिसके थ्रू आप मेल सेंड करते हो। तो इसके अंदर सारे फीचर्स होते हैं जो आपको चाहिए मेल सेंड करने के लिए। बेसिकली मेल सेंडिंग फीचर्स आर प्लेस्ड इन जावा मेल सेंटर डिपेंडेंसी। So then we'll make just a public void send message. A function is made. So first of all, I need the data from, like, from the client. So for that we make a separate DTO that is known as data transfer objects. So I'll just make one package and name it as DTO. हम इस पैकेज का नाम DTO रख देंगे और हम क्या करते हैं, इसकी क्लास का नाम रख देते हैं ईमेल DTO। DTO, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ कुछ नहीं है, एक एनोटेशन मार दो छोटी सी, @data। मैंने जो लॉन्गबॉक्स स्टार्टिंग में आपको इंस्टॉल कराया था ना, अब क्या होगा, आपको इनके गेटर सेटर मेथड बनाने पड़ेंगे, इससे आपको नहीं बनाने पड़ेंगे। आप यहाँ सीधा करो, सॉरी, आपको सब्जेक्ट भेजोगे वहाँ से, जो हम सेट करेंगे बाद में। एक हम भेजेंगे टेक्स्ट, जो आपका मेल में टेक्स्ट होता है, जो टेक्स्ट। तो हम इस DTO का यूज़ करेंगे ये सब चीज़ें भेजने के लिए। तो अब इसके लिए छोड़ देते हैं अभी के लिए। हम यहाँ पे ईमेल DTO का ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं। ईमेल DTO एक क्लास है, उसका हम ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं। ये हमने उसको ऑब्जेक्ट पास कर दिया है। अब हम इसकी चीज़ों को यूज़ करेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो, आपको ना एक टेम्पलेट चाहिए होता है, तो उस टेम्पलेट को आपको कौन देगा, आपको टेम्पलेट आपको मिलेगा सिंपल मेल मैसेज, ये नाम होता है शायद, हाँ, मैसेज इज इक्वल्स टू सिंपल मेल मैसेज, मैसेज इज इक्वल्स टू न्यू सिंपल। सो बेसिकली एक आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिया सिंपल मेल मैसेज का। अब आप इसके अंदर चीज़ें सेट करना शुरू कर सकते हो, जैसे मैसेज डॉट सेट टू, आपको इसके अंदर एक सेट टू करके मिलेगा। अब टू क्या है, मतलब आप किसे भेजना चाहते हो। तो अभी हम क्या करेंगे, जो हम डिटेल्स निकाल लेंगे, डॉट गेट ईमेल, जो मैंने बोला था ना वहाँ गेटर सेटर बनाने पड़ते हैं, अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देखो, मैसेज डॉट सेट सब्जेक्ट ईमेल DTO डॉट गेट सब्जेक्ट मैसेज डॉट सेट टेक्स्ट, मतलब जो आप टेक्स्ट उसमें डालना चाहते हो मैसेज के अंदर, ईमेल DTO डॉट गेट टेक्स्ट। ये आपने तीन चीज़ें भेज दी। अब ये आप भेज सकते हो ईमेल मैसेज डॉट सेंड फ्रॉम, यहाँ पे आप अपनी पूरी वो आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो आप पुट कर सकते हो, जो भी मान लो, जैसे फॉर एग्जांपल abcd@gmail.com। लेकिन अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो जावा मेल सेंटर अपने आप एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में ढूंढेगा कि वहाँ पे कोई यूज़र नेम हमने डाल रखा है और उस पे मेल, उसके थ्रू मेल भेज देगा। तो आपको ज़रूर नहीं होता सेम, आप लिख सकते हो सेम, मैं यहाँ लिख देता हूँ मैसेज डॉट सेट फ्रॉम abcd@gmail.com, एक स्ट्रिंग के अंदर होना चाहिए। ये बेसिकली ये यहाँ पे कमेंट मार देते हैं, दिस इज ऑप्शनल, इसे ना भी भेजो बस आपके एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में, लेकिन आपका यूजर नेम सेट होना चाहिए। अब आपने ये तीन चीजें कर दी। अब सीधा मेल सेंडर डॉट सेंड मैसेज,
एंड बूम, आपकी सर्विस रेडी है। एक सिंपल सर्विस आपको किसी को भी मेल भेजने के लिए रेडी है। अब हम इसका कंट्रोल लिखेंगे जो कि आपके एंड पॉइंट्स को मैनेज करता है। तो हम यहाँ पे जाएंगे न्यू जावा क्लास और यहाँ पे इसका नाम रखेंगे ईमेल कंट्रोलर। ईमेल कंट्रोलर, हाँ। तो हमने क्लास बना दी। अब यहाँ पे आपको दो एनोटेशन मारनी होती है, सेम चीज़ है। रेस्ट कंट्रोलर, आपका डिपेंडेंसी इंजेक्शन, आईओसी कंटेनर, जितनी भी आपको चीज़ें पता होगी आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन करने के लिए ये सारी एनोटेशंस मारनी बहुत ज़रूरी होती है। और ये होती है रिक्वेस्ट मैपिंग। अब देखो आपको लगेगा ये क्यों ही कर रहा है, इसकी ज़रूरत क्या है। इसकी ज़रूरत देखो क्या है, ये भी मुझे भी लेटेस्ट पता लगा है कि जैसे हम सेम पोर्ट पे ही ना अलग अलग बैकएंड रन करा सकते हैं अगर हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर रखा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ये सेंड करा और यहाँ पे ईमेल कर दिया, ठीक है। तो जो भी सेंड पे होगा ना वो इस वाली ऐप पे आएगा। अगर यहाँ पे मैं सेंड करके एपीआई लिख देता हूँ वो किसी और ऐप पे जा सकता है। तो सेम पोर्ट पे अलग अलग बैकएंड भी रन करा सकते हैं। तो दिस इज थिंग। तो अब हमें इसका कंट्रोलर लिखना है। हमने दो चीज़ें कर दी। अब हम यहाँ ऑटो ऐड करेंगे। अब हमें कंट्रोलर लिखने के लिए सर्विस की फंक्शनैलिटी को सर्विस की शक्तियों को यहाँ लाना होगा। तो उसे लाने के लिए हम उसे यहाँ कॉल करेंगे ईमेल सर्विस। ईमेल सर्विस हमने इसे यहाँ कॉल कर दिया, ठीक है। जेन्युइन काम कर दिया भाई हमने। अब देखो अब आप दो चीज़ कर सकते हो। अब में से मैं तो लिख देता हूँ पोस्ट मैपिंग, पोस्ट रिक्वेस्ट मारेंगे बेसिकली। सेंड, एक रिस्पॉन्स एंटिटी करके होता है, ये आपकी एक जेनरिक क्लास होती है जिसको आप यूज़ कर सकते हो अलग अलग टाइप के रिस्पॉन्सेज को हैंडल करने के लिए। ये हम यहाँ स्ट्रिंग रख देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम स्ट्रिंग टाइप के मैसेज ही डिस्प्ले कराएं आगे दिखाने के लिए। मतलब यहाँ एक सेंड ईमेल करके फंक्शन बना देते हैं। अब यहाँ पे डेटा आएगा कहाँ से, डेटा आएगा रिक्वेस्ट बॉडी से। हम फ्रंट एंड से डेटा भेजेंगे। तो यहाँ पे एक एनोटेशन होती है रिक्वेस्ट बॉडी, और किस फॉर्म में आएगा, एम्प्लॉय डीटीओ के फॉर्म में आएगा। एम्प्लॉय डीटीओ, इसके फॉर्म में आपके पास डेटा आएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको बेसिकली ट्राई कैच लगा दो। ट्राई, सबसे पहले हम क्या ट्राई करना चाहते हैं, सबसे पहले हम क्या ट्राई करेंगे कि हमारी ईमेल सर्विस डॉट, इसके अंदर देखो ईमेल सर्विस के अंदर एक सेंड मैसेज करके है। इसके अंदर हमें बस कुछ नहीं करना, अपना एम्प्लॉय ईमेल डिटेल अपना पास हो गया क्योंकि हमने वहाँ से ईमेल का ऑब्जेक्ट लिया क्लाइंट साइड से और उसने यहाँ पास कर दिया। तो बस कुछ नहीं, आपकी ईमेल सर्विस में ताकि ये सब हैंडल कर लेगा। हाँ तो गाइस यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, क्योंकि हमारी जेनरिक क्लास थी। हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक करना है ईमेल सेंट सक्सेसफुली कॉमा http स्टेटस डॉट ओके। बस गाइस ये आपका कंट्रोलर भी बिल्ड हो गया है। कैच भी कर लेते हैं, अगर कोई दिक्कत आई, कोई भी दिक्कत आ सकती है ना, तो हम हमेशा एक्सेप्शन ये नाम रख देते हैं इसका। अब इसे हम यहाँ कैच, इसे हम हैंडल कर लेंगे बेसिकली। यहाँ पे हम यहाँ भी एक रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी टाइप का ही रिटर्न करेंगे। और हम यहाँ टेक्स्ट के अंदर क्या लिखेंगे, टेक्स्ट के अंदर ई डॉट गेट, जो भी मैसेज आया है वो एक्सेप्शन से गेट कर लेंगे। और कुछ नहीं है, HTTP स्टेटस में डाल देंगे इंटरनल सर्वर एरर होता है, हाँ इंटरनल सर्वर एरर। आपका कंट्रोलर भी बिल्ड हो गया है। अब गाइस मैं आपको ये पोस्टमैन पे टेस्ट करके दिखाता हूँ। हमारी पूरी बिल्ड हो गई है। आपका जो भी एम्प्लॉय सर्विस थी, हमने ईमेल सर्विस बिल्ड कर ली है, ईमेल कंट्रोलर बिल्ड कर लिया है, उसका DTO बिल्ड कर लिया। अब हम इसे पोस्टमैन पे टेस्ट करेंगे। So guys, we have completed the code. Now we'll test the code and send an email to my personal email ID. So let's first run this server. We'll do run Java. Server is running on Tomcat. Started the port on 8080. So it is running on 8080. So then we'll go to our postman. We'll select it as post. अब हम लिखेंगे, मैंने पहले से ही लिख रखा है। बॉडी पे जाएंगे क्योंकि हम वहाँ से एक ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं, एम्प्लॉय DTO भेज रहे हैं। रॉ सेलेक्ट करेंगे, जेसन सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे एक कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और इसके अंदर सबसे पहले लिखेंगे ईमेल। अब ये जो नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये आपके अलाइन होने चाहिए आपके एम्प्लॉय DTO के साथ। अगर यहाँ ईमेल स्मॉल है तो यहाँ भी ईमेल स्मॉल ही आएगा। दिस इज माई पर्सनल ईमेल ID. We'll write a subject as email working,
email sender service working perfectly, and we'll write a text. This is the body of the email. So, dear Mohit, your email sender service is working perfectly. अपने मुंह से अपनी तारीफ करना पसंद है मुझे. स्पेलिंग तो सही है ना, बेइज्जती हो जाएगी. नहीं. अब हम यहाँ से, हमारा सर्वर चालू है, अब हम यहाँ से सेंड करेंगे. रिस्पॉन्स में ईमेल सेंड सक्सेसफुली आना चाहिए. ईमेल सेंड सक्सेसफुली, क्योंकि यही मैसेज हमने अपने कंट्रोलर में डाला था. यहाँ पे देख सकते हैं आप कि अगर ईमेल अच्छे से चला जाए तो आप ये वाला मैसेज भेज दें और HTTP स्टेटस ओके कर दें, जो हमें यहाँ पे 200 दिखाई दे रहा है. अब हम आपको मेल में दिखाएंगे जाके. हाँ, you can see, dear Mohit, your email sender service is working perfectly. With this, you can make email sender service. You just need to add the things there, and you can make this a very, very good backend and use this email sender service any way you want. Thank you, everyone.